کراچی میں غیر ملکیوں پر حملہ کرنے والے خودکش بمبار گاڑی تک کیسے پہنچے؟ ابتدائی تفتیش میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ ڈی آئی جی ایسٹ اظفر مہیسر نے لانڈھی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش حملہ کرنے والے دہشت گردوں سے متعلق معلومات فراہم کی ہیں۔ ڈی آئی جی ایسٹ کے مطابق لانڈھی کی ماسیرا کالونی میں حملہ کرنے والے دہشت گرد پیدل چل کر گاڑی کے قریب آئے۔ حملہ آوروں کے پاس 6 دستی بم، SMG اور 3 میگزین تھے۔ حملہ آوروں کے پاس پیٹرول کی 2 بوتلیں بھی تھیں۔ تمام چیزیں حملہ آوروں کے پاس موجود بیگ میں تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملازمین کی جس وین کو نشانہ بنایا گیا اس کے پیچھے کمپنی کے افسر کی گاڑی تھی۔ افسر کی گاڑی کے پیچھے کمپنی کے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑی تھی۔ دہشت گردوں نے وین پر فائرنگ کی۔ وین کے پیچھے موجود سیکیورٹی گارڈز نے جوابی فائرنگ کی۔ ڈی آئی جی ایسٹ نے بتایا کہ سیکیورٹی گارڈز کی فائرنگ سے ایک دہشت گرد مارا گیا۔ دوسرے دہشت گرد نے وین کے قریب آ کر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ غیر ملکیوں کے ہمراہ موجود سیکیورٹی گارڈز نے دہشت گرد سے مقابلہ کیا۔ دہشت گرد کو سر پر گولی مار کر ہلاک کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ حملہ صبح 6:50 پر کیا گیا۔ جائے وقوع سے خودکش حملہ آور کا سر اور کچھ اعضاء ملے ہیں۔ ہلاک دوسرے دہشت گرد کے فنگر پرنٹس کے ذریعے شناخت کی کوشش کی جائے گی۔ انچارج CTD راجہ عمر خطاب کے مطابق 3 گاڑیوں میں غیر ملکی جا رہے تھے۔ خودکش حملہ آور جائے وقوع کے قریب موجود تھے۔ سیکیورٹی گارڈ نے حملہ آوروں پر فائرنگ کر کے حملہ ناکام بنایا۔ اسپیڈ بریکر پر گاڑی آہستہ ہوئی تو حملہ کیا گیا۔ گاڑی میں موجود تمام غیر ملکی محفوظ رہے۔ انچارج CTD نے بتایا ہے کہ دہشت گرد موٹر سائیکل پر گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچے۔ جائے وقوع کے قریب دہشت گرد موٹر سائیکل سے اتر گئے۔ دہشت گرد گاڑی کے قریب پیدل پہنچے اور پھر فائرنگ کی۔ پنجاب ٹیچرز یونین ضلع جنگ کی تقریب حلف وفاداری گورنمنٹ MB ہائی اسکول ریل بازار جنگ صدر میں منعقد ہوئی، جس میں جنگ کی 4 تحصیلوں کے نئی باڈی تشکیل دی گئی۔ تقریب کی صدارت ضلعی صدر محمد انور جپا، ضلعی جنرل سیکرٹری محمد سعید احمد اور نائب صدر غلام شبیر نے کی۔ اجلاس میں اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی جو ضلع بھر کے طول و عرض سے تشریف لائے تھے۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے مقررین نے اساتذہ کے آئے روز بڑھتے ہوئے مسائل، حکومت کی تعلیمی عدم دلچسپی، اساتذہ کی لیو انکیشمنٹ اور دیگر ضبط کی گئی مراعات کی بحالی پر زور دیا۔ اس کے علاوہ عرصہ دراز سے مقامی سطح پر رکی پروموشنز کو جلد از جلد بحال کیا جائے تاکہ اساتذہ دل جمعی سے اپنے فرائض سر انجام دے سکیں۔ نیز صوبائی سطح کے مسائل پر خوب بحث کی گئی۔ اسکولوں میں گرتے ہوئے معیار تعلیم کی وجوہات، اساتذہ کو غیر تعلیمی ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھنا قرار دیا گیا۔ کتب کی بروقت فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ عرصہ 7 سال سے نئے اساتذہ کی تعیناتی پر پابندی۔ اسکولوں میں ہزاروں کی تعداد میں پڑی خالی اسامیاں۔ صوبہ بھر میں سینکڑوں اسکولوں میں پرنسپل اور ہیڈ ماسٹر کی خالی اسامیاں جیسے مسائل زیر بحث لائے گئے۔ بہت سارے اسکولز میں سنگل ٹیچر جیسے مسائل زیر بحث لائے گئے۔ مقررین نے اسکولوں کی حالت زار کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت کی بے حسی اسی طرح برقرار رہی تو پنجاب میں تعلیمی اسٹرکچر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس موقع پر اساتذہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یونین کو مزید فعال کرنے پر زور دیا گیا، جبکہ تقریب کے اختتام پر نئے عہدیداران نے حلف بھی اٹھایا۔ خبر شامل کرتے سرگودا سے ہمارے رپورٹر شیخ عابد نفیس کے مطابق عالمگیر یوم نہضام جنت البقیع تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا سرگودا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ جنت البقیع جنت المعلیٰ کی تعمیر نو کی جائے اور مسلم حکمران فلسطین میں اسرائیلی و کشمیر میں بھارتی بربریت بند کرائی جائے۔ انسانیت کے ورثہ کے تحفظ کے لیے سنی شیعہ اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ مقدسہ جنت البقیع جنت المعلیٰ دنیا بھر کی طرح پورے پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی خصوصی ہدایت پر قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ ماتمی مظاہرے کیے گئے۔ اس موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ عامر عباس، علامہ غضنفر عباس قاسمی، علامہ ضمیر حسین شرازی، شفقت علی ترابی اور دیگر رہنما اور کارکنوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی جو کہ حسین چوک اور پھر پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے مختلف بینر اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر جنت البقیع کی اس سے نو تعمیر کے لیے مطالبات درج تھے۔ ریلی نے حسین چوک پہنچ کر جلسہ کی شکل اختیار کر لی
जहाँ शिरका से खिताब करते हुए अल्लामा गज़नफ़र अब्बास कासमी ने कहा कि अगर उम्मत मुसलमा जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला की मसमारी का रास्ता रोक लेती तो किसी को बैतुल मुक़द्दस को आग लगाने की ज़रूरत ना होती। नहीं, उन्होंने कहा कि बुजुर्गान दीन की इज़्ज़त और हरमत उनके ज़िंदगी में वाजिब है। उन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों पर जोर दिया, बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब पर सफारती दबाव डाले। बाद अज़ा जुलूस के शुरका पर जोश नारे लगाते हुए पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। इस मौके पर वतन अजीज़ पाकिस्तान के सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की गई कि जल्द अज जल्द जन्नतुल बकी को तामीर किया जाए। हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत सऊदिया से मुतालबा करे या ज़ोर के साथ जितनी जल्दी हो सके जन्नतुल बकी को तामीर करे। ये मुतालबा करते हैं कि इन कुबूर जो इन्हिदाम जन्नतुल बकिया का सबब जो सऊदी हुकूमत की वजह मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इसका सबब बना, जिसके फतवे की वजह से ये हुआ, हम एक तो इसकी मजम्मत करते हैं, दूसरा तामीर का मुतालबा करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हम ये रैली निकाल के एहतजाज कर रहे हैं कि ये जुल्म हुआ है और सऊदी अरब वालों को हया करना चाहिए। जहाँ मंदिर तामीर कर रहे हैं, कबा खाने तामीर कर रहे हैं, वहाँ वो जन्नतुल बकिया के मज़ारात की तामीर का सोचें और तमाम ममलिकत इस्लामिया से जितने ममालिक इस्लामिया हैं उनसे ये कहते हैं कि तुम नबी को क्या मुंह दिखाओगे क़यामत के दिन कि उनकी बेटी की इज्जत नहीं कर सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खबर शामिल करते हैं सिंध से। हमारे ब्यूरो चीफ सिंध हसन अकील मोकल की रिपोर्ट के मुताबिक कराची आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के तावन से सक्खर आर्ट काउंसिल में होने वाले 3 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल जारी। हसन अब्बास का लिखा और डायरेक्शन में जदीद तर्ज के स्टेज नाटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेश किया गया, जिसे देखने के लिए सक्खर शहर और आसपास के दर्जनों इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन और बच्चों और बड़ी तादाद में तलबा ने इंतहाई दिलचस्पी से इस ड्रामे को देखा और उसे सराहा। इस मौके पर बतौर मेहमान सक्खर आर्ट काउंसिल के सदर मुमताज़ बुखारी, मलिका आफ्ताब, गुलाम अकबर सोलंगी, अशरफ राही रोहड़ी, प्रेस क्लब के सदर मुजाहिद बोजदार, शफीक शेख, उस्मान गनी और सादत अली कुरैशी व दीगर शामिल थे। बादशाह सक्खर आर्ट काउंसिल के सदर मुमताज़ बुखारी का कहना था कि हमें फ़ख्र है कि सक्खर आर्ट काउंसिल की टीम ने इस किस्म का जदीद ड्रामा पेश करके दिखाया है और सक्खर में भी टैलेंट की कमी नहीं है। इस किस्म के जदीद ड्रामों से हम मुल्क के किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिगर ड्रामों से मुकाबला कर सकते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि स्टेज नाटक के हवाले से पाकिस्तान ख़ास तौर पर सिंध में रोबोटिक खातून नहीं दिखाई गई है। हमारी सक्खर की टीम ने यह कामयाब तजर्बाती प्रोग्राम करके साबित किया कि सक्खर में भी टैलेंट की कमी नहीं है। खबर शामिल करते हैं सिंध से। हमारे ब्यूरो चीफ सिंध हसन अकील मोगल की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में सनती तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। जाम इकरामुल्लाह धारीजू। कराची 19 अप्रैल सूबाई वज़ीर सनत और तजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजू की ज़ेर सदारत महकमा सनत और तजारत का तारुफ़ी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी सनत मोहम्मद यासिन शरबलोच, MD साइट गज़नफ़र अली कादरी और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। सिक्योरिटी सनत मोहम्मद यासिन शरबलोच और MD साइट गज़नफ़र अली कादरी ने सूबाई वज़ीर सनत और तजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजू को जारी तरक्याती स्कीमों के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए जाम इकरामुल्लाह धारीजू ने अफसरान से कहा कि वो सूबे में कारोबारी सनती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए सनतकारों और ताजर बरादरी के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप को बरकरार रखें। और उनका मज़ीद कहना था कि वह खुद सनती जोन्स का दौरा करके दरपेश मसाइल का जायज़ा लेंगे। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि वह सनती जोन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, तजावज़ात का खात्मा करें और मुलाज़िमीन की बरवक्त तनख्वाहों के अजरा को यकीनी बनाएं। सूबाई वज़ीर बराए सनत और तजारत जाम इकरामुल्लाह धारीजू ने उम्मीद ज़ाहिर की कि महकमा के अफसरान अहदाफ हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे, क्योंकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी सिंध में सनती इनकलाब देखना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह धारीजू ने घोस्ट मुलाज़िमीन के खिलाफ कार्रवाई करने और मुलाज़िमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को भी फ़ाल करने की हिदायत देते हुए कहा कि नए सनती जोन्स में प्लाट्स को दरख्वास्त गुजारों को जल्द अज जल्द कब्जा दिया जाए ताकि वो वहाँ सनतें कायम करें, सूबे से बेरोज़गारी का खात्मा हो। कायद का
कारवान सूबाई वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सीनियर रहनुमा जनाब हाजी नूर मोहम्मद खान दोमर साहब को चीफ ऑफ दोमर सरदार एहसानुल्लाह खान दोमर, सरदार अतीक रहमान तारड़, मलिक गुल रंगज़ेब काकड़, हाजी नियाज मोहम्मद खान काकड़ और दीगर मुआज़्ज़िज़ सीनियर रहनुमा, मोतबरीन, कबायली उमायदीन और कारकुनान वजारत का कलमदान संभालने पर मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दे रहा है। रिपोर्ट सैयद नेमतुल्लाह पठान, ब्यूरो चीफ पाक, पंजाब न्यूज़, ज़िला दुक्की। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ जवार वारिस अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक जुडिशल वाटर कमीशन एंड इंसदाद स्मोक कमीशन के अरकान मैडम हिना हफीजुल्लाह और सैयद कमाल अली हैदर ने ज़िला फ़ौराक इक़दामात के सिलसिला में हाफिजाबाद का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदस अरशाद की ज़ेर क़यादत डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामी के इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग। जुडिशल वाटर कमीशन एंड इंसदाद स्मोक मैनेजमेंट के अरकान मैडम हिना हफीजुल्लाह और सैयद कमाल अली हैदर ने डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदस अरशाद के हमरा ज़िला हाफिजाबाद के मुख्तलिफ देहात का दौरा करते हुए ईंटें बनाने वाले भट्टों की ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी, गंदम की कटाई के बाद फसलों की बाकियात को जलाए जाने की वजह से पैदा होने वाले धुआं से सांस की बेपनाह अमराज जन्म लेती हैं, जिसका असर कई नस्लों तक मुतासिर करता है। इसी सिलसिले में जुडिशल वाटर कमीशन मैनेजमेंट के वफ़द ने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से किए गए इंसदाद स्मोक इक़दामात का जायज़ा लिया। जुडिशल वाटर कमीशन ने नवाही गाँव लोहरे का दौरा करते हुए वहाँ पर मुकामी ज़मींदार मोहम्मद रिजवान से भी मुलाकात की और फसलों की काश्त के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जदीद मशीनरी और ज़रूरी टेक्नोलॉजी का जायज़ा लिया। बाद DC ऑफिस में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब तक इंसदाद स्मोक के हवाले से की जाने वाली कार्रवाइयों और दीगर इक़दामात के सिलसिला में DC ऑफिस में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदस अरशाद ने जुडिशल वाटर कमीशन को बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फसलों के बाकियात जलाने वाले ज़िम्मेदारों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी। इस हवाले से कमीशन के रुकन मैडम हिना हफीजुल्लाह ने कहा, बच्चों ने, आपके बूढ़े माँ बाप ने, ये जो लगता है ना कि जी छोटा सा चलो जी आग लग गई, नहीं, इट्स डिस्ट्रॉइंग योर एटमॉस्फेयर। ये आग थोड़ी सी आग नहीं है, ये तबाही फैला रही है। ये क्लाइमेट चेंज क्यों है? क्यों आप लोगों की फसलें तबाही हुई हैं? मेरा तो दिल पे लग रहा था, आज हाथ डाल दिया किसी ने। हम आए हैं हाफिजाबाद में तो गंदम गिरी पड़ी है, कितना नुकसान है। ये क्या है? ये क्लाइमेट चेंज है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ जवार वारिस अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदस अरशाद का DPO और असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन सियाल के हमरा शहर के मुख्तलिफ नान शॉप, तंदूर और होटल्स का दौरा किया। इस दौरान रोटी और नान की क्वालिटी, वज़न और कीमत का भी जायज़ा लिया। पंजाब के दूसरे अजला की तरह वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर अवाम नास को सस्ती रोटी और नान की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए हाफिजाबाद की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया मुतहरिक। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदस अरशाद ने DPO हाफिजाबाद फैसल गुलजार और असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन सियाल के हमरा शहर के मुख्तलिफ होटल्स, नान शॉप और तंदूरों का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदस अरशाद और DPO फैसल गुलजार ने खुद रोटी और नान के वज़न और क्वालिटी का जायज़ा लिया। इसके अलावा खरीदारों से कीमत के हवाले से दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर सुंदस अरशाद की हिदायत पर ज़िला भर में तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जबकि सरकारी रेट्स पर रोटी नान ना फरोख्त करने वाले दुकानदारों, नाकिस क्वालिटी रोटी नान फरोख्त करने वालों को जुर्माने और FIR का इंदराज किया जा रहेगा। सरकारी कीमत पर रोटी नान ना फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे कायद मोहतरम जनाब लियाकत अली शाही की क़यादत में आज स्टेट बैंक, BSC बैंक कराची से खैबर तक 16 सेंटरों में रेफरेंडम हो रहा है। इन क़यादत में इंशाल्लाह फतेह डेमोक्रेटिक वर्कर्स यूनियन की होगी। मैनुअल रिचर्ड। खबर शामिल करते हैं बल्किसर से। हमारे ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक बल्किसर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 22 मलिक फलक शेर अवान की हिमायत में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया, जो कि एक बड़े जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई और बल्किसर की तमाम बरादरियों के नुमाइंदा शामिल थे और सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान किया।
इस मौके पर हाजी शौकत महमूद अवान साहब का चेयरमैन यूनियन काउंसिल बिल्किसर ने हमारे ब्यूरो चीफ असद अब्बास से बातचीत करते हुए कहा बात कि हम इंशाल्लाह कौमी इलेक्शन की तरह ज़मीनी इलेक्शन में भी फतह हासिल करेंगे और अपने कायद सरदार गुलाम अब्बास साहब के हुक्म के मुताबिक इंशाल्लाह 21 अप्रैल को हल्की की गयूर अवाम शेबात साबित करेगी। ज़िला चकवाल मुस्लिम लीग नून का किला है। हाजी मोहम्मद बशीर साहब, कैसर महमूद बोडा साहब, राना मोहम्मद यूसुफ साहब, हकीम इरफान साहब, काजी इरफान साहब, हाजी जैद अंजुम साहब, साहब का उम्मीदवार ब्राई काउंसलर मलिक असर अब्बास साहब और आसिम तौकीर साहब भी इस मौका पर मौजूद थे।